बांग्लादेश में हो रही घटनाओं का असर अब हमारे भी देश में देखने को मिल रहा है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के मजदूर लोगों पर, जो उन राज्यों खासतौर पर ओडिशा में रहते हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है। ऐसे ही कुछ प्रवासी मजदूरों की आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल ये लोग पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा जिले के रहने वाले हैं और अपनी रोजी रोटी की खातिर पिछले कई सालों से ओडिशा के मोहना जिले में कंस्ट्रक्शन लेबर का काम कर रहे थे। लेकिन जब से पड़ोसी देश बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का पतन हुआ है, वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमले की खबरें आने लगी हैं। इसके बाद इन प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी कहकर वहां के स्थानीय लोगों ने मारा पीटा। इन लोगों ने वहां के लोगों को बताया कि वे बांग्लादेशी नहीं हैं, बल्कि भारत के निवासी हैं, मुर्शिदाबाद और मालदा जिले के रहने वाले हैं। लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई और उन्हें मारा पीटा गया। आखिरकार जान बचाकर ये सभी ओडिशा छोड़कर बंगाल वापस आ गए। ऐसे लोगों की सहायता के लिए जमीयत उलेमा हिंद ने मदद का हाथ बढ़ाया। जमीयत उलेमा हिंद के कोलकाता इंचार्ज जिलुर रहमान आरिफ के नेतृत्व में जमीयत की एक वफद ने आज हावड़ा स्टेशन पर पहुंचकर ओडिशा से जान बचाकर आए इन प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की और स्टेशन पर ही जहां तक हो सका उन्हें खाने पीने की चीजें दी गई और साथ ही उन्हें घर तक जाने का किराया आदि देकर अपना फर्ज पूरा किया। इस अवसर पर जिलुर रहमान आरिफ ने कहा कि बांग्लादेश में अगर अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है तो ये सरासर गलत है, लेकिन इसे लेकर हमारे ही देश के लोगों को बांग्लादेशी बताकर मारना उससे भी गलत है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हाँ बोलून, अपना बाड़ी कौन जाएगा? হরিয়ারপাড়া থানা, সরবপুর গ্রাম, মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদ জেলা। হ্যাঁ বলুন। আপনার আমরা কাজ করছি, হঠাৎ এসে কি বলছে তোরা বাঙালি তো? হয় আধার কার্ড দেখা, আধার কার্ড দেখে কি বলছে এটা আপনার ডুপ্লিকেট, এটা চলবে না, তোরা তাড়াতাড়ি পালা, নাহলে মারধর আরম্ভ করবো। বুঝলি, মারধর আরম্ভ করলে আমরা জানার ভয় পালিয়ে দিচ্ছি। মেরেছে? হ্যাঁ, মারধর করেছে। ওরা মানে কি জানেন কারা মেরেছে? কারা মেরেছে? পুলিশ যে ছিল, পুলিশ এসেছে? হ্যাঁ পুলিশ ছিল, পুলিশের সামনে মেরেছে ওরা। কি বলছিল ওরা? বলছে এই উড়িষ্যা আর আসবি না, আসলে কাটে ফেলবো, ই করে ফেলবো, এরকম কেন মেরেছে? কেন বলতে বাংলাদেশ ই করছে ওরা, হাসিনা আমাদের হাসিনা ইটা বলছে বাংলাদেশে, হ্যাঁ বাংলাদেশি তোরা তাহলে কাটে ফেলবো, ভয় দেখাচ্ছে। মুসলিম পালি মারছে। হ্যাঁ মুসলিম পালি মারছে ওরা। কারা মারছে? ওখানকার স্থানীয় লোক, সব স্থানীয়রা মারছে। স্থানীয় লোক কি নিয়ে? বাংলাদেশ নিয়ে। বাংলাদেশ নিয়ে একটা ঝামেলা হয়েছে, ওই ঝামেলা নিয়ে। আপনাদের কি বাংলাদেশি বলছিল? আমাদের বাংলাদেশি বলছিল, আমরা তো বাংলাদেশি, আমরা তো ইন্ডিয়া, আমাদের ইন্ডিয়ার কার্ড আছে, সব আছে, আধার কার্ড আছে, সব আছে। না এটা পুলিশকে বলেছেন? পুলিশকে? পুলিশ প্রশাসন থেকেই তো মানে মারা ধরা হচ্ছে। পুলিশকে নিয়ে এসে আমাদেরকে ধরে মারলো, দু একজন চোর চাপ্পর মেরেছে। তারপরে আমরা কি করবো, নিরুপায়, জীবন নিয়ে পালিয়ে আসো। আপনারা কোন জায়গায় কাজ করতেন? উড়িষ্যা? গজপতি মোহনা, গজপতি ডিস্ট্রিক্ট মোহনা। কিসের কাজ করতেন? রাজমিস্ত্রি কাজ। রাজমিস্ত্রি? হ্যাঁ। কবে থেকে আপনারা কাজ করতেন? আমরা আসা যাওয়া কন্টিনিউ ভাবে তো 2 মাস 3 মাস করে থাকি, তো 2 বছর থেকে, প্রায় 1 বছর থেকেই করছি আমি। আপনাদের বাড়ি কোন জায়গা? বাড়ি আমাদের মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদ জেলা। না যাবো না, এখন বাড়ি ফিরেছি, বাড়ি যাবো। পরে যাবো কিনা বলতে, হ্যাঁ যেতে তো হবেই, ব্যবসা আলাপ আছে, আমরা তো দীর্ঘদিন কাজ করছি ওখানে। বাঙালি লোক মারবো। এগুলো কি বাংলাদেশ নিয়ে আপনাদেরকে মেরেছে? হ্যাঁ বাংলাদেশ কেন্দ্র করে মারছে আমাদেরকে। মুসলিম পালি মারছে ওখানে। আচ্ছা আমাদের বাংলাদেশ স্থানীয় মুসলমান আছে? আপনাদের মুসলমান নেই ওখানে? মানে হিন্দু আর খ্রিস্টান, মুসলমান নেই ওখানে? মুসলমান নেই আপনাদের বাংলাদেশি বলে? বাংলাদেশি না, মুসলমান বলে মারছে আমাদেরকে। ওই আধার কার্ড দেখে? আধার কার্ড দেখা, আধার কার্ড দেখা। পুলিশকে দেখিয়েছিলেন? না আমরা পুলিশ সঙ্গে পেরেছি, তো পুলিশের সাথে আছে। পুলিশ কি বললো? পুলিশ কিছু স্টেপ দিয়েছেন আমাদের। পুলিশ বলছে তাড়াতাড়ি এখান থেকে তোরা চলে যা। ওখানকার পুলিশ স্থানীয় প্রশাসন কি আপনাদের কোনো হেল্প করেছে? আপনারা কি নিজে থেকে এসেছেন? আমি একমাত্র যে বাড়ি ভাড়া ছিলাম, সে বাড়ি ভাড়া একদিন আমাদের সাথ করে গাড়ি করে আমাদেরকে বহরমপুর পেড়ে দিয়েছে। আমাদের সবাই মিলে 10 জন, ম্যাক্সিমাম 10 জন আমাকে তাড়া করেছিল আর নদী থেকে ঝাঁপ মেরে আমি পালিয়েছি। আমার ব্যাগ নেই, মোবাইল নেই, আমার কোনো কাজ নেই, কার্ড নেই, কিছু নেই।
আপনি ওইখানে কাজ করতে আমি গেছেন? ওখানে কাজে গেছি, এদের সাথে ছিলেন? এদের সাথে একসঙ্গে ছিলাম, ওই রাজমিস্ত্রি কাজ? আর একসঙ্গে রাজমিস্ত্রি কাজ ওরা আপনার ওরাই কাড়ে নিয়েছে থাকবি না, তার বলছে এক কথা ছিনে নিয়েছে, সব কেড়ে নিয়েছে? না, সব নিয়ে আসতে পারেনি, ভয়ে মারবে। ও পালিয়ে এসো। পালিয়ে এসছে। কতজন আছো তোমরা? এখানে 50 জন আছে আমরা। বলছেন উলমায়ে হিন্দ আপনাদের জন্য হাওড়া স্টেশনে আপনাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে, কি আপনারা বলবেন? আপনারা খুশি? আমরা খুশি। জামিয়াতুল উলমা হিন্দে যারা কার্যকর্তারা এসছে ওদের জন্য কি আপনি বলবেন? ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, ওনার সহযোগিতা আমরা থেকে তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আপনি কি বলবেন? আমরা ধন্যবাদ বলবো, সহযোগিতা পেয়েছি। আপনারা কিভাবে জামায়াতের সঙ্গে সম্পর্কটা করলেন? আমাদের বাচ্চা ছিল, ও আপনার ওর ফোন নাম্বার ছিল, সে যোগাযোগ করে ঠিক আছে। रब्ता इसलिए हुआ कि जमीयत उलमा की बंगाल में हर जगह यूनिट है। तो हम लोग की मुर्शिदाबाद की यूनिट के लोग जो हैं उन लोगों ने बताया कि हम लोग के साथ उड़ीसा में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हमारे बंगाल के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब, उनके पास इन्होंने कांटेक्ट किया। कल से ये लोग का कांटेक्ट हो रहा था और आज जो है इन्होंने मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब ने मुझे सुबह फ़ोन करके बताया कि वो लोग हावड़ा स्टेशन आ रहे हैं, उन लोग का इस्तकबाल कीजिए। वो लोग का खाने पीने का पैसा नहीं है, किराया भाड़ा का पैसा नहीं है, उन लोग की मदद कीजिए क्योंकि वो लोग जैसे तैसे हाल में वहाँ से भागे हैं अपनी जान बचा के। इन लोग का क्या मतलब परेशानी पेश आया था उनके साथ? इन लोग के साथ परेशानी ये आई थी कि इन लोगों को वहाँ बोला गया कि तुम लोग बांग्लादेशी हो। इन लोगों ने अपना आधार कार्ड भी दिखाया मुर्शिदाबाद वगैरह का कि हम लोग मुर्शिदाबाद में रहते हैं, वहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ मजदूरी करने आए। लेकिन उन लोगों ने आधार कार्ड देखने के बावजूद भी इन लोग को वहाँ से भगा दिया मार पीट के। ये लोग अपना जान बचा के भागे वहाँ बांग्लादेश से। में जो हो रहा है क्या उसका रिएक्शन? हाँ, उसी के रिएक्शन में इन लोगों को वहाँ से भगाया गया। अब क्या कहना चाहे जो मुल्क में इस तरह के वाक़यात इस तरह के जो वाक़यात हो रहा है, जो मीडिया गलत फहमी फैला रहा है, उसको हकीकत तौर पे सही ढंग से उसको न्यूज़ को बनाएं और बंगाल के अंदर में जो अमन शांति है उसको बरकरार रखा जाए। इस तरह से यहाँ पे भी किसी तरह का कोई अमन में कोई खलल नहीं आना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद जो पूरे हिंदुस्तान की एक बड़ी तंजीम है और पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है, इसके लिए कोई आवाज़ उठाएगी उसके खिलाफ? वो तो खैर हमारे जो बड़े करेंगे फैसला वो करेंगे, हम लोग का तो अभी वो मामला नहीं है। ये तो हम लोग के हिंदुस्तान का कोई मसला नहीं है। बांग्लादेश वाला वो लोग अपना समझे जो कर रहा है वहाँ का। लेकिन बांग्लादेश की आग जो है बंगाल और हिंदुस्तान में फैल रही है, इसको आप क्या कहेंगे? इसके लिए हम लोग यही कहेंगे कि अमन और अमान से लोग रहें और सही सूरत हाल को समझने की कोशिश करें। क्या बांग्लादेश को लेकर जो यहाँ पे रिएक्शन और ऐसा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए लोगों से क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे कि अमन अमान से रहें, आपस में भाईचारा जैसे बना हुआ है हिंदुस्तान का उसी तरह से भाईचारा में वहाँ पे रहें। जो हो रहा है क्या उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? वहाँ उसके के लिए जो तो हम लोग मजम्मत कर रहे हैं। माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है वहाँ पर, वहाँ के वो भी गलत हो रहा है, जी। जो हो रहा है वहाँ भी वो गलत हो रहा है। वहाँ नहीं होना चाहिए। वहाँ की हुकूमत को इस पर कंट्रोल करना चाहिए, काबू पाना चाहिए। इस तरह का कहीं भी कोई मामला हो रहा है तो गलत हो रहा है, हम लोग उसके साथ नहीं हैं। मामला बांग्लादेश का तख्ता पलटने का था, तो फिर इसके हिंदुस्तान का मामला कहाँ से वो लोग लेकर आए? वो तो देखिए वहाँ का मैटर है और यहाँ के कुछ मीडिया वाले हैं जो गलत फहमी फैला रहे हैं और गलत फहमी के नतीजे में यहाँ इस तरह का मामला हो रहा है। वैसे हमारे बंगाल में पूरा अमन है, शांति है। हमारे दीदी ने भी अमन की अपील की है और हम लोग भी अमन की अपील करते हैं और अल्लाह का फजल करम है कि अभी तक यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर में, लेकिन उसके दूसरी तस्वीर ये भी है कि वहाँ बहुत सारी मंदिरों की हिफाजत खुद मुसलमान भी कर रहे हैं और मुसलमानों को भी वहाँ मारा जा रहा है, सिर्फ हिंदू को नहीं मारा जा रहा। जो शेख हसीना पार्टी के काम करने वाले थे, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, उन तमाम लोगों को मारा जा रहा है।